Good morning, students. So in last class we were discuss about the large intestine. On that day it was not completed. So now we will continue this topic. I think in starting we were discussing about the large intestine of ox and it was completed, and then after intestine of horse and dog. बट आई थिंक उस दिन ज्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा फिर से इसको रिवाइज करेंगे. तो डिस्कशन करेंगे. नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोलन? Yes, cecum, colon and rectum. There are three parts of large intestine. Cecum, colon and rectum. There are three parts of large intestine, and length of the large intestine is 11 meter. Out of which 75 centimeter. 75 centimeter is of cecum. 25 centimeter is of rectum. And remaining 10 meter portion is of colon. So here the disposition of colon is different. The colon is comprised of three parts: ascending colon, transverse colon and descending colon, right? Ascending word define that any structure is going towards cranially, and descending means the structure is passing towards caudal. So ascending word बोला हुआ है, मतलब ये जिस भी प्लेस पे है it is moving towards head. ठीक है, तो if we see the diagram, here you see that this is the cecum, and then after there is starting of ascending colon. This is the starting of ascending colon. The ascending colon further divided into three parts. That is, बताओ भाई कौन कौन से three parts होंगे ascending colon के? Proximal loop, spiral loop and distal loop. Very good. Proximal loop, spiral loop and distal loop. There are three parts of ascending colon. So here we see as it is started, this portion will be known as proximal loop. This portion, whole portion is the spiral loop जो यहाँ तक आ रहा है. Then after it is forming coil. ठीक है, and these coils, there are two coil, two centripetal. Petal का centripetal means it is moving towards center, and centrifugals it is moving outward from the center. ठीक है ना, against the center. So two coil of centripetal and two coil of centrifugal will be present over here, and this is here you see that it is almost round. ठीक है ना, ये जो क्वाइल्स हैं, यही अगर हम शेप में देखेंगे तो ये इलिप्टिकल हो जाएगा. ये जो शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? इलिप्टिकल हो जाएगा. लेंथ वाइज क्वाइल्स विल बी मोर. ठीक है ना, लेंथ विल बी मोर एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर और विड्थ. ठीक है, तो हियर वी सी दैट देयर आर two centripetal and two centrifugal coils, and afterward it is continued as, क्या बोलेंगे इसको? डिस्टल लूप बोलेंगे. ठीक है ना, afterward it is continued as distal loop. तो ये पूरा जो है distal loop है. Then after it, when it turns from right to left, then it is here, means this is what is this? This is the cranial mesenteric artery. So this distal loop is curving. It is curving from this cranial mesenteric artery from right to left, and then this part will be known as transverse colon. Transverse colon जो है बहुत छोटा सा part है, transverse colon, and then it is continued as descending colon. So this one is the descending colon. जितना straight portion आपको दिख रहा है ये descending colon है, और ये जो portion है, जो turning portion है, this is the transverse colon. ठीक है ना. So proximal loop, spiral loop and distal loop are the three part of
ascending colon, then after there is transverse colon, then after there is descending colon, and descending colon opens in rectum. ठीक है? These coils of jejunum, they are situated little bit ventrally, and these whole coil of this spiral loop is situated dorsally. ठीक है ना? So whenever we approach this the intestine along the right flank incision, ठीक है ना? अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था rheumatommy has to be performed from the left abdominal wall, and for this approach of intestine we have to go towards right flank incision or right abdominal side. तो right abdominal side में भी हमें याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये जो टोपोग्राफी है सारे ऑर्गन्स की, which organs will be present at what position. तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन अप्रोच करना है थोड़ा ऊपर, उसी में ही फ्लैंक में भी थोड़ा ऊपर, और स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रोच करना है थोड़ा नीचे आपको अप्रोच करना है. ठीक है ना? इंटेस्टाइन अप्रोच को बोलते हैं एंटेरोटॉमी. एंटेरोटॉमी, ठीक है ना? ENTEROTOMY, एंटेरोटॉमी. एंटेरोटॉमी का मतलब क्या है? नाउ यू आर गिविंग एन इंसिजन ओवर द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. ठीक है? सो देयर आर मेनी कंडीशन इन विच वी हैव टू अप्रोच द इंटेस्टाइन. ठीक, जैसे इंटरसेप्शन, वॉल्वुलस. ठीक है? तो ये जो कंडीशंस है अभी पढ़ोगे आप, पैथोलॉजी में पढ़ोगे क्या है ये कंडीशन. आप लोगों ने सुना भी होगा, ह्यूमन में भी सुना होगा कि बोले वो आंतें फंस गई, एक आंत के ऊपर दूसरी आंत चढ़ गई, ऐसा सुनते हैं, हिंदी में सुनते हैं ये सब सारे टर्म. सो इंटरसेप्शन मतलब यही है कि एक के ऊपर दूसरा वॉल को चढ़ जाना. ठीक है? सो हियर वी सी दैट हाउ वी हैव टू अप्रोच द इंटेस्टाइन फ्रॉम राइट फ्लैंक इंसिजन. ठीक, एंड दिस अप्रोच इज कॉल्ड एंटेरोटॉमी. एंटेरोटॉमी. ठीक, रेक्टम डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी. ठीक है? पेरिटोनियम पढ़ेंगे तब आपको एक बार फिर ये चीज रिवाइज होगी कि हाउ दिस रेक्टम, द क्रेनियल पार्ट ऑफ रेक्टम इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड कॉर्डल पार्ट is not covered by peritoneum. ठीक है ना? So this is non-covered part is called ampulla recti, right? What is the perineum? Perineum क्या है? Around anus is called perineum. ठीक है ना? क्योंकि बाद में आप लोग पढ़ोगे, बोले पेरिनियल इंसिजन दिया, पेरिनियल इंसिजन दिया, तो पेरिनियल वर्ड ही नहीं पता होगा तो कैसे समझ में आएगा कि पेरिनियल इंसिजन दिया है. ठीक है? जब आप प्रोलेप्स वगैरह पढ़ेंगे, यूट्राइन प्रोलेप्स जाके फाइनल ईयर में, तो फिर वहां पर आपको बार टर्म आएगा. ठीक है? कि भाई आपको लोकल एनेस्थीसिया देना है, फिर वहां पेरिनियम से लेके वहां पे जो सूचर लगाने हैं. ठीक है? तो पेरिनियम वर्ड बार बार आएगा. ठीक है? फिर हॉर्स का लार्ज इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख के ले लो. मतलब अगर एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा लार्ज इंटेस्टाइन से, या तो ऑक्स का आएगा या हॉर्स का आएगा. ठीक है? डॉग और पिग इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली सीकम एंड कोलन. ठीक है? सो हियर वी सी द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 7 to 8 मीटर. उसमें से भी सीकम का देखेंगे तो 1.2 मीटर है. ठीक है ना? 1.2 मीटर ऑफ सीकम, 3.5, 3.5 ग्रेट कोलन, 3.5 स्मॉल कोलन. और ट्रांसवर्स कोलन जैसे हमने वहां पर देखा भी थी, ऑक्स में देखा था ना कि द टर्निंग पार्ट इज द ट्रांसवर्स कोलन, वैसे ही हॉर्स में ही जो छोटा सा सेगमेंट होगा दैट इज ट्रांसवर्स कोलन. मेजर कंट्रीब्यूशन बाय द ग्रेट कोलन एंड स्मॉल कोलन. ठीक है? तो यहां पर हम देख रहे हैं 1.2 मीटर इज ऑफ सीकम, 0.3 मीटर ऑफ रेक्टम या 30 सेंटीमीटर ऑफ रेक्टम. तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 1.5 मीटर हो गया. ठीक, 1.5 मीटर हो गया. और 3.5 प्लस 3.5 कितना हो गया? 7. तो ये क्या हो गया? अगर 1.5 प्लस 7 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा. ठीक है? इसीलिए इसमें रेंज दी हुई है 3 to 3.5, 3 to 3.5. ठीक है? तो दैट इज व्हाई द रेंज इज गिवन ओवर हियर के ऐसा नहीं है कि 3.5 एग्जैक्ट मिलेगा या 3 एग्जैक्ट मिलेगा, इसके बीच में मिलेगा. ठीक है?
सो दिस इज द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ग्रेट कोलन को ग्रेट कोलन क्यों बोलते हैं? Why the great colon is known as great Ma'am, it and is small big. colon is? Base of diameter. Yes, because of diameter. Yes, because of diameter. देखो यहाँ पर हम तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वर्ड पहले हमने डिफरेंशिएट किया था. लार्ज इंटेस्टाइन टर्म हमने क्यों यूज किया था? बिकॉज ऑफ डायमीटर इज मोर. स्मॉल इंटेस्टाइन डायमीटर इज लेस. जबकि लेंथ, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ दिखाएंगे तो इट इज क्वाइट longer than the large intestine, but it is known as small intestine because of less diameter as compared to large intestine. Here also again the great colon and small colon word, length is almost same of both the part, but because of diameter. तो diameter कितना होगा ये हम देखेंगे. वन बाई वन फिर से डिस्कस करते हैं. सीकम लास्ट में क्लास में पढ़ाया था, फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. कैपेसिटी याद रखना है सीकम का, कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है. कैपेसिटी ऑफ द सीकम 25 to 30 लीटर कैपेसिटी. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ स्टमक इन केस ऑफ हॉर्स? कैपेसिटी ऑफ स्टमक इन केस ऑफ हॉर्स 12 liter. यस 12 लीटर. तो यही देखिए, यस इट इज मींस द कैपेसिटी ऑफ सीकम इज डबल टू द कैपेसिटी ऑफ stomach. Means major function is provided by the cecum. Cecum is contributing more. ठीक है. So here we see the 25 to 30 liter capacity of the cecum. Length is about 1.2 meter, and it extends in a curved manner from right iliac sublumbar region to the xiphoid cartilage. ठीक है. मतलब ये जो है एक फ्लेक्सर कर्व बना रहा है. ठीक है. It is forming a cartilage along the abdominal floor. बोथ एक्सट्रीमिटीज आर ब्लाइंड. बोथ एक्सट्रीमिटीज आर ब्लाइंड का मतलब क्या है कि स्ट्रेट नहीं है ना, सीधा सीधा नहीं है. ठीक है. सीधा सीधा नहीं है, ऊपर से भी कर्व है और एपेक्स तो इसका ब्लाइंड है ही. तो बोथ एक्सट्रीमिटीज आर ब्लाइंड एंड टू ओरिफिसेस आर प्लेस्ड 5 to 7.5 सेंटीमीटर अपार्ट एट कॉन्केव कर्वेचर. अब देखो पहले हम डायग्राम देखेंगे सीकम, उसमें देखते हैं इधर का. Here we see that जैसे इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे डायग्राम. ये तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हियर इट इज फॉर्मिंग अ कर्व. ठीक है. इट इज कर्व एंड एक्सटेंडिंग अप टू द जिफॉइड. ये जो पोर्शन है, ये एपेक्स पोर्शन इज लाइंग क्लोज टू द जिफॉइड. जिफॉइड क्या है? जिफॉइड कार्टिलेज ऑफ द स्टर्नम, जहां स्टर्नम खत्म हो रहा है. जिफॉइड कार्टिलेज विल बी प्रेजेंट ओवर हियर एंड सीकम इज एक्सटेंडिंग अप टू दैट लेवल. Here we see that there is opening of ileum and here is the opening of colon. So they are 5 to 7 centimeter apart and open it the concave curvature का मतलब क्या है? लेसर कर्वेचर. ये इसका ग्रेटर कर्वेचर है, ये वाला पोर्शन. ये ऊपर क्या कहलाएगा? ग्रेटर कर्वेचर. और नीचे क्या कहलाएगा? लेसर कर्वेचर. तो यहां पर पोजीशन चेंज है एट द लेवल ऑफ बेस. This is called base of the cecum. This is called body of the cecum. This is called apex of the cecum. Base, body, and apex. There are 3 parts of the cecum. So at base, the greater curvature lies dorsally. However, in body, the greater curvature lies ventrally. Whether this statement is true, जो मैंने अभी बोला है, base at the level of base the greater curvature lies dorsally, ऊपर की तरफ greater curvature, और यहां पर जो greater curvature है that is ventrally. तो यहां मतलब यहां और यहां दोनों में पोजीशन greater curvature का चेंज हो गया है. यहां अगर हम डिफाइन करेंगे तो greater curvature lies dorsally, यहां अगर डिस्क्राइब करेंगे then greater curvature lies ventrally. ठीक है. Now what is tinea and haustra? Longitudinal bands and circulations. So tinea क्या है? बैंड है या सेकुलेशन? Band. Yes, tinea are bands and haustra are circulation. ठीक है. Tinea are bands, haustra are circulation. So tinea and haustra are present in cecum as well as in colon in case of horse. So
इनकी नंबर फिक्स्ड हैं, मतलब अगर हम देखेंगे तो नंबर जो है फिक्स्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक हॉर्स में अलग नंबर मिलेगा तो दूसरे हॉर्स में जाएंगे तो अलग नंबर मिलेगा। तो सीकम में कितने सीट पीनिया मिलेंगे, कितने हॉर्स मिलेंगे, ये फिक्स्ड है, ठीक है। सो हियर वी सी there are presence of 4 longitudinal bands or 4 tinea are present. 4 longitudinal bands or 4 tinea are present and they are named as medial, lateral, cranial and caudal, ठीक है ना। 4 टीनिया है तो 4 सेकुलेशन भी बन गए। कैसे बने? ये टीनिया आपको उस टाइम समझने, जैसे हमने स्टिचिंग पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था ना, बैंड है ये ना। तो एक कपड़ा है, कपड़े से उसको ऐसे लंबाई में उसमें बैंड बना दिया, सिलाई कर दी, तो 2 बैंड के बीच में एक एरिया जो बनेगा दैट इज विल बी द सेकुलेशन, ठीक है ना। जैसे ठीक है। हियर इफ वी सी हियर, सो टीनिया विल बी लाइक दिस, जैसे एक बैंड ये हो गया जो कि बॉडी में देना, दूसरा बैंड ये हो गया और 2 बैंड उस तरफ है। तो एक बैंड और दूसरे बैंड के बीच में जो पाउच जैसा बनेगा दैट दिस पाउच, ठीक है। तो दीज पाउच आर द हॉस्ट्रा, ठीक है। दीज पाउच आर हॉस्ट्रा एंड द लाइन्स आर बैंड्स। तो लाइन क्या है? वो थिकन टाइप की, जैसे हमने वहां पिलर्स पढ़े थे ना, पिलर्स पढ़े थे, ग्रुप पढ़ा था, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये there are presence of bands, they are called tinea and hostra or seculations, ठीक। so 4 tinea, medial, lateral, cranial and caudal, 4 tinea are present, ठीक। सीकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है और इसका टोपोग्राफी भी पढ़ना है। जैसे बेस एक्सटेंड क्रेनियली ऑन राइट साइड एज फॉर एज 14 to 15th रिब, मतलब जो बेस का क्रेनियल एक्सटेंड है आगे तक, क्योंकि ऊपर तो आपने पढ़ा था राइट इलियक एंड सब लंबार रीजन, वहां से स्टार्ट होगा एंड इट बेस इज एक्सटेंडिंग अप टू 14 to 15th रिब्स। कितनी रिब्स होती है हॉर्स में? 18 रिब्स होती हैं, ठीक है ना। There are 18 ribs in case of horse. So that is why we are saying that 18 rib के बाद abdominal cavity शुरू होगी और उस वहीं पर आ जाएगा, वहां पे फिर pelvic girdle आएगा, ठीक है। तो आप इमेजिन करो जो बेस है वो कितना चौड़ा है, that it is starting from the right iliac region, ट्यूबर कॉक्सी वाला जो एरिया होगा वहां से होके to 15th रिब तक आगे तक एक्सटेंड जाएगा, ठीक है। तो ये बेस का पूरा लेवल है। देन इसके बाद हम आगे ग्रेट कोलन, देन ट्रांसवर्स कोलन, देन स्मॉल कोलन, ठीक है। तो जो ग्रेट कोलन और सीकम का जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट थोड़ा बराबर ही होता है, अराउंड हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर करीबन इसका जो है डायमीटर आता है, 25 सेंटीमीटर करीबन। और जो स्मॉल कोलन है इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर to 15 सेंटीमीटर, स्मॉल कोलन, डायमीटर ऑफ स्मॉल कोलन, ठीक है ना। डायमीटर ही कम है इसलिए इसको स्मॉल कोलन बोला है। ग्रेट कोलन डायमीटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सीकम, ठीक है ना। तो बड़ा सुंदर सा अरेंजमेंट है कोलन का हॉर्स के केस में, जिसको हम फ्लेक्सर बोलते हैं, ठीक है। और कोलन, तो फ्लेक्सर क्या है? ये टर्न्स हैं, जहां पर वो टर्निंग होगा, दैट पॉइंट्स आर नोन एज फ्लेक्सर, ठीक है। एंड डिफरेंट पार्ट्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू इट्स टोपोग्राफी और पोजीशन। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे हम, बेस, ये बेस है, दिस इज द बेस, ठीक। बेस इज प्रेजेंट ओवर हियर। इसके बाद एक कोलन शुरू हुआ, तो अभी क्या है, सीकम थोड़ा कैसे नीचे साइड है, तो जो कोलन का स्टार्टिंग है वो भी नीचे है और सीकम अभी किस तरफ है? राइट साइड है।
सीकम किस तरफ है? राइट साइड है। तो जो फर्स्ट सेगमेंट हुआ कोलन का उसको क्या बोला है? राइट, क्योंकि राइट साइड है। वेंट्रल क्योंकि नीचे है, और कोलन, राइट वेंट्रल कोलन। तो दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलन इज राइट वेंट्रल कोलन। नाउ इट मेक वन टर्न, एक टर्न लेगा, ठीक है। और ये टर्न किस तरफ है? यहाँ पर क्या है? ये स्टर्नम है ना, यहाँ जिफॉइड है ना, और ये नीचे की तरफ ही है, ये वाला पार्ट, ये जो सेगमेंट है वो किस तरफ है? नीचे ही है। फिर इसके बाद ये टर्निंग ले रहा है, तो ये टर्निंग को क्या नेम दे दिया? स्टर्नल फ्लेक्सर। This is termed as sternal flexor because it is lying somewhat ventrally and at the यहाँ AC level पे क्या है? Gyphoid है। The apex of the cecum lies at the level of gyphoid. That is why this flexor, this turn is known as sternal flexor. अब अभी हमने देखा था कि right ventral है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, अब इस डायग्राम पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। अभी डिफरेंट अपन ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोलन पढ़ा है ना। अब आप लोग बताइएगा, मैं पूछूंगी आप लोगों से, व्हाट दिस पार्ट विल बी टर्म्ड। ये जो सेगमेंट होगा ये क्या सेगमेंट, तो क्या बोलेंगे इस सेगमेंट को? राइट वेंट्रल। राइट वेंट्रल कोलन, ठीक है ना। दिस सेगमेंट इज राइट वेंट्रल कोलन। देन आफ्टर इट मेकिंग वन टर्न, दिस टर्न विल बी टर्म्ड एज, ये टर्न को क्या बोलेंगे? इस फ्लेक्सर को क्या बोलेंगे? स्टर्नल फ्लेक्सर। Sternal flexor. फ्लेक्सर बोलेंगे। आफ्टर द स्टर्नल फ्लेक्सर नाउ इट इज अगेन गोइंग बैकवर्ड, लेकिन है वेंट्रली ही, ठीक है ना। ये जो पार्ट हुआ कोलन का, दिस इज लाइंग वेंट्रली बट टुवर्ड्स, नाउ इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज व्हाई वी विल टर्म दिस लेफ्ट डॉर्सल कोलन। दिस पार्ट इज द लेफ्ट डॉर्सल कोलन। देन आफ्टर इट इज अगेन मेकिंग वन टर्न, फिर से टर्निंग होगी, लेकिन वो टर्निंग होगी, ये जो टर्निंग दिख रही है ये कहां पर होगा? एट द लेवल ऑफ पेल्विक रीजन और पेल्विक गर्डल। सो हियर दिस टर्न इज नोन एज पेल्विक फ्लेक्सर। पेल्विक फ्लेक्सर के बाद अब ये जो पोजीशन है आप देख रहे हो, ध्यान से देखिए यहां पर देखो, दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रल कोलन, इट इज फॉर्मिंग पेल्विक फ्लेक्सर। नाउ इट इज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है ना। इट इज नॉट कमिंग टूवर्ड्स राइट साइड, क्योंकि ये टर्न इस तरफ हो गया, ये टर्न ऐसे नहीं आया है। ऐसे होता टर्न तो ये लेफ्ट से राइट में आ जाता, ठीक है। तो अभी ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रल कोलन के ऊपर ही लेफ्ट डॉर्सल कोलन जाएगा। ये यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या उसको सीक्वेंस वाइज लिखने लगते हैं कि राइट वेंट्रल कोलन, लेफ्ट वेंट्रल कोलन, ठीक है। फिर इसके बाद लिखने लगते हैं राइट डॉर्सल कोलन, फिर लेफ्ट डॉर्सल कोलन, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है। लेफ्ट वेंट्रल के बाद लेफ्ट डॉर्सल आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। एलवी के बाद एलडी आएगा, लेफ्ट वेंट्रल कोलन, देन पेल्विक फ्लेक्सर एंड देन लेफ्ट डॉर्सल कोलन, ये अच्छे से याद रखना है। फिर देन लेफ्ट डॉर्सल कोलन, इट इज गोइंग टुवर्ड्स क्रेनियली, एट दिस लेवल डायफ्राम इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई दिस टर्न इज नोन एज डायफ्रामेटिक फ्लेक्सर, इसलिए इसको क्या बोला है? डायफ्रामेटिक फ्लेक्सर बोला है। अब ये किस तरफ आ गया? टर्न लेके राइट साइड आ गया, तो इसको अब हम क्या बोलेंगे? राइट डॉर्सल कोलन बोलेंगे। तो कैसे याद रखना है? सबसे पहले आरबीसी राइट वेंट्रल कोलन, देन एलबीसी लेफ्ट वेंट्रल कोलन, देन एलडीसी लेफ्ट डॉर्सल कोलन एंड देन आरडीसी राइट डॉर्सल कोलन। और कितने फ्लेक्सर हैं? 3 फ्लेक्सर हैं। पहला फ्लेक्सर स्टर्नल फ्लेक्सर, दूसरा फ्लेक्सर पेल्विक फ्लेक्सर और तीसरा फ्लेक्सर डायफ्रामेटिक फ्लेक्सर। मतलब 3 फ्लेक्सर हैं, 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट ऑफ कोलन, 3 फ्लेक्सर्स, ठीक है। अब इन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ दिस कोलन एंड फ्लेक्सर देयर आर प्रेजेंस ऑफ टीनिया एंड हॉस्ट्रा एंड ईच पार्ट हैज डिफरेंट टीनिया एंड डिफरेंट हॉस्ट्रा, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अभी हमने सीकम में पढ़ा, हाउ मेनी टीनिया एंड हॉस्ट्रा आर प्रेजेंट इन सीकम? 4 टीनिया, 4 रो हॉस्ट्रा। 4 टीनिया एंड 4 हॉस्ट्रा हमने पढ़ा सीकम में, है ना। सीकम में हमने 4 टीनिया 4 हॉस्ट्रा पढ़ा। इसके बाद अब हम हर एक उसमें पार्ट में भी टीनिया एंड हॉस्ट्रा का नंबर पढ़ेंगे। यहाँ पूरी डायग्राम में देखोगे ये जो पोर्शन ये कितना पतला है और विदाउट एनी टीनिया एंड हॉस्ट्रा, ये देख रहे हो आप कि इतने मोटे मोटे सेगमेंट के बीच में ये पतला सा सेगमेंट चला आ रहा है, किसका? पेल्विक फ्लेक्सर का, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है पेल्विक फ्लेक्सर, ये
this portion is not having tinea and hostra and it is small in diameter. तो ये जो पूरे आप कोलन वाला पार्ट देख रहे हैं, ग्रेट कोलन का पार्ट ये सारा देख रहे हैं, इस ग्रेट कोलन में आप देखिए the pelvic flexor is having small diameter as well as no tinea and no hostra over here. तो ये अभी आप ध्यान से देखो, फिर आप जब बाद में मेडिसिन में जाएंगे, बाद में पढ़ेंगे, कोलिक पढ़ेंगे, कोलिक इन केस ऑफ हॉर्स intestinal problem is more predominant compared to stomach problem. हॉर्स में इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं कंपेयर टू स्टमक, और इसमें इंटेस्टाइन में कौन सी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे र्यूमिनेंट में देखेंगे तो र्यूमन का प्रॉब्लम ज्यादा है, वहां ब्लोट, टेम्पेनीज, इंफेक्शन, ये सब किसके कारण होता है, र्यूमन के कारण। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बॉल्स इकट्ठी हो जाता है, ड्राइड बॉल्स ऑफ feces or we can say ingesta is accumulated over here कभी कभी, तो उसमें animal is suffering from very intense pain and that condition is called colic in case of horse. मतलब यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब कोई बॉल, मतलब जो फीसेस की बॉल है, गट इंजेस्टा की बॉल है, ड्राई हो गया और फंस गया, तो कंटेंट आगे मूव नहीं कर रहा है, गैसेस अकुमुलेट हो चुकी हैं, देन कंडीशन इज कॉल्ड कोलिक, ठीक है। तो हॉर्स के केस में लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा यूटिलिटी है। डिफरेंट पार्ट ऑफ कोलन हैज डिफरेंट पार्ट ऑफ टीनिया एंड हॉस्ट्रा। तो सबसे पहला कौन सा सेगमेंट था कोलन का, आरबीसी था, फिर कौन सा था, एलबीसी। तो आरबीसी एंड एलबीसी बोथ हैज 4 टीनिया एंड 4 हॉस्ट्रा एज इन केस ऑफ सीकम। तो देखो अगर आपको याद रखना है अगर इसको, तो आप कंटिन्यूशन में याद रख सकते हो कि देखो what is the condition present in the cecum, 4 tinea and 4 hostra. Again that continuation of मतलब cecum के बाद RBC है, then LBC है, both are having 4 tinea and 4 hostra. इसके बाद आता है LBC के बाद आता है क्या, LDC. LDC has 1 tinea, ठीक। then RDC right dorsal, LDC के बाद क्या आएगा, right dorsal colon आएगा ना, that has 3 tinea and 3 hostra. फिर इसके बाद आता है, इसमें देखो फ्लेक्सर का नाम भी लिखा है, जिसमें से अगर हम पेल्विक फ्लेक्सर की बात करेंगे तो पेल्विक फ्लेक्सर हैज नो टीनिया एंड नो हॉस्ट्रा एंड द वॉल इज डायमीटर इज लेस। फिर इसके बाद हम आते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन इज ऑल्सो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट बिटवीन ग्रेट एंड स्मॉल कोलन। स्मॉल कोलन इज प्लेस्ड बिटवीन स्टमक एंड पेल्विक इनलेट and it has 2 tinea and 2 hostra, means small colon is also having the tinea and hostra, ठीक है। लेंथ वही है जो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज कोलन, ग्रेट कोलन का लेंथ था 3.5 करीबन, केवल डायमीटर यहाँ हाफ हो जाएगा करीबन, वहां हमने बढ़ा था 24-25 सेंटीमीटर डायमीटर, यहाँ करीबन हाफ हो जाएगा, 12 से 15 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर रेक्टम, रेक्टम इज अराउंड 30 सेंटीमीटर एंड द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू इन केस ऑफ ऑक्स, जैसे हमने पढ़ा था ना, एम्पुला रेक्टाई, एनाल्स, एनल कॉलम्स, ठीक, that is similar. Rectum structure of rectum is similar here in case of ox and horse, ठीक है। अब in case of dog, अभी मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, in case of dog large intestine is not very much important, ठीक है। वेरी मच इंपॉर्टेंट किस हिसाब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन ऑक्स का बहुत पूछा जाता है, हॉर्स का बहुत पूछा जाता है, डॉग का थोड़ा कम है, ठीक है। यहाँ पर डॉग के केस में एनल सैक पूछे जाते हैं, एनल सैक, एनल सैकुलाइटिस इज द कंडीशन, ठीक। एनल सैक क्या है ये देखते हैं, ठीक है ना, ऑफ एनस, ठीक। सो दे आर सिचुएटेड एट द 3 and 6 o'clock पोजीशन, ठीक है। तो 2 anal sac are present और they contain grey colored fatty substance। क्या होता है कि sometimes एनस के नीचे, एनस वाल के नीचे, ठीक, एनस के नीचे वाले एरिया में अगर आप देखोगे ऑन वेंट्रली ऑन आइदर साइड ऑफ एनस 2 sac आर प्रेजेंट, जो कि बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर सैक होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा होता है, एक फैटी सब्सटेंस भरा होता है विच इज वेरी फाउल इन ऑर्डर, स्मेल उसकी बहुत ही खराब स्मेल होगी, वेरी फाउल ऑर्डर।
sometime what happen, these anal sac get accumulated with these fatty substance, ठीक है ना, and the condition become painful. Condition become painful. For in such condition, the operation has to be performed. ठीक है, और एनल सेकुलाइटिस बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ एनल सेक. ठीक, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, इंपॉर्टेंट एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट नहीं है. जब आप जाएंगे फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में, जब क्लिनिकल पढ़ेंगे, क्लिनिकल केसेस पढ़ेंगे, फिर तब वहां एनल सेक का नाम दोबारा आएगा और फिर उससे रिलेटेड आप अफेक्शंस पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये स्पीसीज वाइज डिफरेंशिएशन है. एनल सेक आर प्रेजेंट इन केस ऑफ डॉग. इन केस ऑफ पिग, जैसे अगर हमने डॉग के केस में देखा, हियर यू सी द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर सीकम, दिस वन इज द सीकम एंड दिस वन इज द कोलन. कोई कॉइल नहीं है, सिंपली देयर इज सिंपल डिस्पोजिशन ऑफ कोलन ओवर हियर, नो टीनिया, नो होस्ट्रा ओवर हियर. ठीक है, इन केस ऑफ डॉग. फिर हम पिग में एबीसी इन केस ऑफ पिग, अगेन देयर इज अरेंजमेंट लाइक इन केस ऑफ ऑक्स. वैसा अरेंजमेंट यहाँ फिर से है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये सब टर्मिनोलॉजी पिग में अभी आएगा. तो हियर वी सी दिस इज इलियम, हियर इट इज अ सीकम, दिस इज सीकम. तो सीकम में अगर आप देखो तो ये जो ऐसे टर्न क्यों दिखाए हुए या मोटा क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टीनिया एंड होस्ट्रा है. इन केस ऑफ पिग देयर आर प्रेजेंस ऑफ टीनिया एंड होस्ट्रा इन लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, हियर ऑल्सो द कोलन इज टर्म्ड एज असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन. और यहां पर अगर हम देखेंगे तो असेंडिंग कोलन, दिस वन इज असेंडिंग कोलन. तो असेंडिंग कोलन यहां पर मेकिंग सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फ्लेक्सर्स. ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था किसके केस में, ऑक्स के केस में, वैसे ही थोड़ा सा यहां पर भी है. तो हियर इज असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलन. असेंडिंग कोलन हैज 3 वाइड सेंट्रीपिटल कॉइल्स, a central flexor and 3 narrow centrifugal coils. बात समझ में आ रही, कितनी कॉइल्स हैं? 3 हैं. ऑक्स के केस में कितनी कॉइल्स थी स्पाइरल लूप में? 2 थी, 2 सेंट्रीपिटल 2 सेंट्रीफ्यूगल, है ना. इन केस ऑफ पिग देयर आर 3 सेंट्रीपिटल एंड 3 सेंट्रीफ्यूगल. हियर वी यू सी दैट सेंट्रीपिटल जो है वो कैसा है, डायमीटर इज मोर. ये देखो जो अंदर की तरफ जो जा रही है, ये देखिए, ये और ये अंदर की तरफ है. इसके बाद सेंट्रल फ्लेक्सर और फिर इसके बाद टर्निंग बैक. तो अगर आप ध्यान से देखो तो सेंट्रीपिटल जो कोलन है, सेंट्रीपिटल लूप इज हैविंग टीनिया एंड होस्ट्रा. हाउएवर सेंट्रीफ्यूगल इज नॉट हैविंग टीनिया एंड होस्ट्रा. डायमीटर इज मोर ओवर हियर. सेंट्रल फ्लेक्सर, असेंडिंग कोलन, ये ऑफ असेंडिंग कोलन आर प्रेजेंट इन. तो ये ऑक्स और पिग दोनों के लिए ये ट्रू है. ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑक्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन पिग, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल कॉइल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन इन केस ऑफ ऑक्स. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा पेरिटोनियम, जो हमें पढ़ना है. पेरिटोनियम और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फाउल. ठीक है, पहले पेरिटोनियम पढ़ लेते हैं. पेरिटोनियम